السلام علیکم۔ اگر آپ میں خود اعتمادی کی کمی ہے تو یہ کتاب آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ دوست بنانا نہیں جانتے تو یہ کتاب آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ گفتگو کے فن کے ماہر بننا چاہتے ہیں تو یہ کتاب آپ کے لیے ہے۔ خود اعتمادی، گفتگو اور دوستی کا فن، آڈیو پروڈکشن، الرحمان آڈیو ورلڈ۔ باب اول، وہ لوگ جو زندگی میں کامیاب ہوئے۔ آپ کو ہر روز کئی ایسے لوگ دکھائی دیتے ہیں جو زندگی میں انتہائی کامیاب ہوتے ہیں۔ ان کے پاس تمام مادی آسائشیں موجود ہوتی ہیں اور وہ بڑے پر اعتماد دکھائی دیتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ لوگ ہر قسم کی مشکلات پر قابو پانے کا عزم اور حوصلہ رکھتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ان میں سے کئی افراد ایسے ہیں جو ماضی میں یقیناً کافی شرمیلے تھے اور ان میں خود اعتمادی کی شدید کمی تھی، لیکن انہوں نے اپنی ان کمزوریوں پر قابو پا لیا اور آج وہ انتہائی کامیاب اور پر اعتماد دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے تمام لوگ جن میں خود اعتمادی نہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ زندگی کی جنگ نہیں جیت سکتے کیونکہ وہ انتہائی شرمیلے اور بزدل ہیں، اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ اس کتاب میں شرمیلے پن، عدم خود اعتمادی اور احساس کمتری کی وجوہات کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان خرابیوں پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے اور کس طرح ایک شخص اپنی شخصیت میں خود اعتمادی پیدا کر کے زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے جو طریقے بتائے گئے ہیں وہ انتہائی آسان ہیں اور انہیں سمجھنے کے لیے زیادہ عقل و فہم کی ضرورت نہیں اور نہ ہی ان طریقوں پر عمل کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ جو شخص زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں سے میل ملاپ رکھنا اور دوست بنانا سیکھے اور اس مقصد کے حصول میں اپنے شرمیلے پن کو حائل نہ ہونے دے۔ چنانچہ اگر آپ گھر میں قید رہتے ہیں، لوگوں سے ملتے جلتے نہیں اور ایک ہنگامہ خیز اور پرلطف سماجی زندگی سے محروم ہیں تو پھر آپ کو یہ کتاب توجہ سے پڑھنی چاہیے۔ یہ کتاب آپ کو یقیناً کامیابی کی راہ پر ڈال دے گی۔ کیا آپ کو اپنی ذات پر بھروسہ نہیں؟ جو لوگ خود اعتمادی سے عاری ہوتے ہیں اور شرمیلے پن کا شکار ہوتے ہیں وہ دراصل خوفزدہ ہوتے ہیں کیونکہ انہیں اپنی ذات پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ جب وہ دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کی پریشانی اور بدحواسی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ وہ گھبرائے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کا ہر انداز بے ربط دکھائی دیتا ہے۔ یہ پریشان حال لوگ دوسروں سے ملنا اور انہیں دوست بنانا چاہتے ہیں، لیکن جب ایسا کرنے کا موقع آتا ہے تو ایک عجیب و غریب نفسیاتی الجھن ان پر مسلط ہو جاتی ہے اور وہ اپنے مقصد میں ناکام رہتے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ایسے پریشان حال شخص کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جو نفسیاتی الجھن اس پر مسلط ہے وہ اصل میں اس کی اپنی پیدا کی ہوئی ہے۔ اگر ایسے شخص کی بچپن کی زندگی پر نگاہ ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ موجودہ نفسیاتی الجھن کی جڑ بچپن کی زندگی میں دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ بچے کی عقل محدود ہوتی ہے، اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ایک واقعے کو اہمیت دینی چاہیے یا نہیں۔ بچپن کی زندگی میں معمولی سا ناخوشگوار واقعہ بھی بچے کو بہت زیادہ ناخوشگوار محسوس ہوتا ہے، چنانچہ اس قسم کا واقعہ بچے کے رویے پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس واقعے کے ساتھ زندگی کا ایک مستقل جز بن جاتے ہیں۔ بچپن میں انسان کی عقل محدود ہوتی ہے، اس لیے وہ نفسیاتی الجھنوں کے گھڑے میں گر جاتا ہے اور یہ الجھنیں اس کی زندگی کا جز بن جاتی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک نفسیات کے ماہرین لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ نفسیاتی الجھنوں پر قوت ارادی کے ذریعے قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن آج یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ محض قوت ارادی کے ذریعے ان الجھنوں پر قابو پانا ناممکن ہے۔ نفسیات کے موجودہ ماہرین کا کہنا ہے کہ نفسیاتی الجھن سے نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس الجھن کی تہہ تک پہنچا جائے اور پھر اس الجھن سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ دریافت کیا جائے۔ نفسیاتی الجھن سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ دونوں باتیں انتہائی اہم ہیں۔ اس کتاب میں ایسے طریقوں پر روشنی ڈالی گئی ہے جن کی مدد سے آپ اپنی الجھنوں کا تجزیہ کر سکتے ہیں اور ان
उलझनों से निजात हासिल करने के लिए अमली कदम उठा सकते हैं। आप अदम इत्मादी और शर्मीलेपन को हरगिज़ इस बात की इजाज़त ना दें कि वह आपकी ज़िंदगी में जहर घोले। लोगों से मेल मिलाप और दोस्त बनाने के लिए ख़ुद को मजबूर करना ज़रूरी नहीं, बल्कि ज़रूरी ये है कि आप अपनी उलझनों के तजिए के बाद एक सेहतमंदाना नुक्ता नज़र पैदा करें। अगर आपने एक सेहतमंद नुक्ता नज़र पैदा कर लिया तो आपकी शख्सियत में खुद बहुत खुद इत्मादी पैदा हो जाएगी और आप दोस्त बनाने के फ़न में महारत हासिल कर लेंगे। खुशमाश और तन्हाई पसंद लोगों की दो बड़ी किस्में हैं। पहली किस्म तो ऐसे लोगों की है जो हंगामा ही ज़िंदगी गुजारते हैं और लोगों के हजूम में खुश रहते हैं। ऐसे अफराद नए नए लोगों के साथ मिलने जुलने में खुशी महसूस करते हैं और ज़िंदगी के हंगामे में भरपूर हिस्सा लेते हैं। ऐसे लोग बहुत कम शर्मीले होते हैं। दूसरी किस्म के अफराद वो हैं जो लोगों के हजूम से नफरत करते हैं। उनके एक या दो मशागिल और चंद दोस्त होते हैं जिनमें वो मगन रहते हैं। उन अफराद की ज़िंदगी बेकार नहीं होती, लेकिन अफसरदा और खामोश ज़रूर होती है। ऐसे अफराद अमूमन शर्मीले होते हैं। शर्मीले लोग बाज़-औक़ात अपने शर्मीलेपन का ये इलाज दरियाफ्त करते हैं कि तबीयत चाहे या ना चाहे लोगों में गुस्सा और ताल्लुकात पैदा करो, चाहे ये सारा काम अपने मिजाज के खिलाफ ही क्यों ना हो। मिसाल के तौर पर एक शख्स किसी खामोश तालाब के किनारे बैठकर मछलियाँ पकड़ने में खुश रहता है और लोगों की महफिल में शरीक होना पसंद नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद एक रोज़ वो क्लब का मेंबर बनने का फ़ैसला करता है, क्योंकि उसका ख्याल ये होता है कि अगर वो क्लब का मेंबर बन जाएगा तो उसे मजबूरन लोगों से भी मिलना पड़ेगा और इस तरह वो अपने शर्मीलेपन पर काबू पाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन हम आपको ये मशवरा देंगे कि अपने आप को किसी ऐसे काम पर आमादा करना जिससे नफ़रत हो, नफसियाती एतमार से एक अच्छा फ़ेल नहीं, ख़ासतौर पर तफरीह के मामले में। क्या आप शर्मीलेपन में मुब्तला हैं? हर शख्स ज़िंदगी में एक अलग रुझान रखता है। जब तक उसके ज़ौक़ की तस्कीन ना हो उसे चैन नहीं आता। अगर आप बेजा शर्मीलेपन पर काबू पाना चाहते हैं तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप अपने रुझानात को मद्देनज़र रखे बगैर हर महफिल में घुस जाएं। अगर एक शख्स हंगामे ही ज़िंदगी बसर नहीं करता तो इसका यह मतलब नहीं कि उसमें खुद एतमादी नहीं और वो शर्मीलेपन के मर्ज़ में मुब्तला है। हो सकता है कि ऐसा शख्स अपना अलग ज़ौक़ रखता हो और जो मसाइल उसे दिलचस्प महसूस होते हैं वो उन मसाइल में मसरूफ़ रहता हो और इस तरह एक खुश व खुर्रम ज़िंदगी बसर करता हो। अगर आपको ये देखना है कि एक शख्स अदम खुद एतमादी और शर्मीलेपन के मर्ज़ में मुब्तला है या नहीं, तो फिर आपको इस बात का जायज़ा लेना होगा कि दूसरे लोगों की मौजूदगी में ऐसे शख्स का तर्ज़ अमल क्या होता है। अगर ऐसा शख्स दूसरे लोगों की मौजूदगी में परेशान और नर्वस नहीं होता, वो लोगों के साथ मिलने से गुरेज नहीं करता और किसी दुश्वारी के बगैर लोगों के साथ बातचीत कर सकता है, तो उसका मतलब ये होगा कि ऐसा शख्स शर्मीलेपन का शिकार नहीं और इसकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक रास्तों पर रवा दवा है। क्या आप लोगों से खौफज़दा हैं? जो शख्स दूसरे लोगों से मिलने से गुरेज करता है और उनसे घबराता है वो यकीनन लोगों से खौफज़दा होता है और ये खौफ उसके तख्त शऊर में होता है। अगर आप खामोश और पुरसकून ज़िंदगी की ख्वाहिश रखते हैं और हंगामा आराई को पसंद नहीं करते तो आपकी ये ख्वाहिश सेहतमंद बुनियादों पर इस्तवार होनी चाहिए और इसमें शर्मीलेपन की मरीज़ाना कैफियत नहीं होनी चाहिए। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि दर हकीकत वो दूसरे अफराद के साथ मिलने से घबराते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि आप ऐसा क्यों करते हैं तो वो जवाब देते हैं कि हम खामोश और पुरसकून और हंगामा आराई से पाक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। ऐसे लोग असल में खुद को धोखा दे रहे होते हैं। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। चनाचा शर्मीले लोग ये तस्लीम नहीं करते कि वो एक बोर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और तन्हाई की वजह से उदास रहते हैं। इसके बरक्स वो ये कहते हैं कि हम तन्हाई पसंद हैं। कभी कभी वो ये भी कहते हैं कि लोग हमें पसंद नहीं करते और हम लोगों को पसंद नहीं करते। जिसका कोई दोस्त नहीं। हकीकत ये है कि जिसका कोई दोस्त ना हो वो शख्स बहुत बदनसीब होता है और वो खुशो-खुर्रम ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। अगर आपका कोई दोस्त नहीं तो आप में एहसास कमतरी मुसलसल बढ़ता जाएगा।
जब आप लोगों के साथ मिलना जुलना छोड़ देंगे तो आपका जहन महदूद हो जाएगा और आपके ख्यालात में वुसअत पैदा नहीं होगी। नतीजा ये होगा कि आप में बर्दाश्त का मादा ख़त्म हो जाएगा और आप ज़रा ज़रा सी बात का बुरा मनाने लगेंगे। आखिरकार आपका दिल नफ़रत का मस्कन बन जाएगा। शख्सियत की तामीर। शख्सियत की तामीर के लिए लोगों से मिलना जुलना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स सुकून की तलाश में नहीं बल्कि अपने शर्मीलेपन को छुपाने के लिए लोगों से मिलना जुलना छोड़ देगा तो शख्सियत की नशोनुमा बिल्कुल रुक जाएगी। इस तरह उसके जहन में एक मुसलसल कश्मकश शुरू हो जाएगी। ये कश्मकश दो ख्वाहिशात के दरमियान होगी। एक तरफ तो दोस्त बनाने की फितरी ख्वाहिश होगी और दूसरी तरफ लोगों से खौफ का एहसास होगा और आखिरकार ऐसा शख्स ये फैसला करेगा कि उसे हर चीज़ से लाताल्लुक़ हो जाना चाहिए। एक शर्मीली लड़की। एक लड़की मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा, मैं चाहती हूँ कि मैं माकूल रवैया इख्तियार करूँ। आखिर मैं क्यों लोगों से मिलते हुए नर्वस हो जाती हूँ और मुझ पर घबराहट तारी हो जाती है। मुझे इसकी कोई वजह दिखाई नहीं देती। मैं खूबसूरत भी हूँ और ज़हीन भी। मैं सोचती हूँ कि मुझे लोगों से मिलते हुए हरगिज़ नहीं घबराना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद मैं जब भी लोगों से मिलती हूँ मुझे पसीना आ जाता है और मेरे पाँव लड़खड़ाने लगते हैं। मुझे लोगों से मिलने और उनसे बात करने से नफ़रत है। मैं चाहती हूँ कि मैं सबसे पीछे खड़ी रहूँ, जहाँ से मुझे कोई ना देख सके, बल्कि मेरा दिल ये चाहता है कि मैं महफिल से गायब हो जाऊँ। अगर लोग अपनी बातें रोक कर मेरी बात सुनने के लिए मेरी तरफ मुतवज्जा होते हैं तो मेरे लिए बात करना मुश्किल हो जाता है और मेरा गला खुश्क हो जाता है। मैं बहुत सोचती हूँ लेकिन मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता कि आखिर मेरी इस घबराहट और शर्मीलेपन की बीमारी की वजह क्या है। चाहे उस लड़की की समझ में अपने शर्मीलेपन की कोई वजह आए या ना आए, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे हर रवैये की कोई ना कोई नफ्सियाती वजह ज़रूर होती है। अगर हम अपनी कमज़ोरियों को समझ जाएं तो मतलब ये होगा कि शर्मीलेपन के मर्ज़ के ख़िलाफ़ हमने आधी जंग जीत ली है, क्योंकि अपनी कमज़ोरियों को समझने के बाद हम इन वजूहात का पता लगा सकते हैं जो इन कमज़ोरियों का बायस बनती हैं और इस तरह हम वो राह तलाश कर सकते हैं जिस पे चलकर हम अपनी ज़ात में खुद एतमादी पैदा कर सकते हैं और शर्मीलेपन से निजात हासिल कर सकते हैं। शर्मीलेपन से निजात मुमकिन है अगर आप में खुद एतमादी नहीं और आप शर्मीलेपन के मर्ज़ में मुब्तला हैं तो फिर आपको चाहिए कि हक़ाइक़ को तस्लीम करें। ये बात तस्लीम करें कि आप तन्हाई की ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं और लोगों के साथ मिलना जुलना और दोस्त बनाना चाहते हैं। आपको अपने जहन से ये बात निकाल देनी चाहिए कि आप शर्मीलेपन से कभी निजात हासिल नहीं कर सकते। खुद एतमादी पैदा करने और शर्मीलेपन से निजात हासिल करने के लिए दो बातें इंतहाई ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये कि आप लोगों के साथ मिलने जुलने और दोस्त बनाने की ख्वाहिश को दबाना छोड़ दें और दूसरी बात यह है कि खुद को धोखा देना छोड़ दें और अपनी कमज़ोरियों का सामना करें। उन कमज़ोरियों को तस्लीम करने के बाद ही आप उनकी वजूहात तलाश कर सकते हैं। अगर आप इस किताब का अगला बाब सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल अल रहमान अकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें।